Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you to another interesting episode of Konaxia High Flyers. Friends, in these episodes, we try to introduce to you emerging corporates and talk to them about their company's business model, their growth journey. And in this process, we introduce the company's promoters so that all of us can understand their company's operations better. And today, friends, we've got a very interesting company which is hitting the capital market. The company's name is Maitreya Medicare Limited, and they run a hospital in Surat. And in fact, we have the privilege of having the top management team. We have got Mr. Dr. Pranav Thakkar, who's the whole-time director of the company. Pranavji, welcome to the show. We also have Mr. Vimal Patel, who is whole-time director with us. विमल जी, आपको भी कार्यक्रम में स्वागत है. तो बहुत अच्छा लग रहा है कि दोनों आप हमको आज जुड़ रहे हो. अच्छा हमको लग रहा है कि काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमको आज आपकी तरफ से मिलेगी जो हमारे इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छी लगेगी. So Pranav ji, first question from my side would be if you can explain to us the company's business model, हमारे कहाँ hospitals है और हमारी growth journey कैसे शुरुआत हुई. How did we start this business journey and what is the kind of positioning our hospital enjoys now in the domestic market. You could add some color and start. Yes. Greetings from the Maitre family to the viewers, and particularly I am thankful Avinash ji for giving us the opportunity to introduce ourselves in the very the noble profession market of healthcare. Our journey started in 2019. We founded the firm in 2019, and we started our hospital in October 2019. We initiated our venture with initially 67 beds, and gradually over the years, now after completing 4th year, now we are at 120 beds. So we are growing year and year in terms of beds, in terms of revenues, in terms of our manpower and human assets, and we grow our business in the very cohesive manner. I would say the journey began in the October 2019. We started the hospital with the vision and mission of providing ethical and evidence-based healthcare services to the people of Surat and South Gujarat in mind, and then we had a vision of expanding it in the other regions. But initially we started our journey with Surat and South Gujarat, and in 2019 we started this hospital. In 2020 we thought of that where we are geographically located, our some patients from the older city which were left out, so we strategically tied up with one of the prominent trust hospital in the city, that is KP Sanghvi Hospital, wherein we started cardiology department with them. And we philanthropically as well as professionally both associated now with the KP Sanghvi Trust Hospital, wherein we are providing our services for the cardiology department. We have deployed our own cardiologists and other technicians and other manpower to run that department. So that was another milestone which we achieved in 2020. And of course, we all know that in 2020 and 21, there were heavy, unprecedented incidents of COVID outbreak. So that was another landmark which we could achieve, because though we have a professional experience of more than 20 years now, each of us, but COVID was unprecedented activity in the century basically. So we cope up very well as a new organization or the startup organization, because we were just 5 months old when COVID struck, and we were having very good non-COVID work going on. Then we were the last one to take up the COVID task, and we successfully managed that first wave. And after taking learnings from the first wave, we thought of that any other crisis in the future, if it comes up, let's be ready with the healthcare infrastructure. Because in the first wave, everybody could realize that Indian healthcare system is still having the lacunas in terms of the infrastructure, human assets, and the skilled doctors. So in all three aspects we tried to cope up, and we conceptualized Valsad Hospital with Maitre Hospital Private Limited, which is again a subsidiary of Maitre Medicare Limited. So in 2021 we have entered into the MOU for the Valsad Hospital, and that will be 120 bed, of course.
So that was the another landmark activity for ourselves. In 2022, with the learnings of this COVID outbreaks, we we had increased the bed capacity of 100, and then in 2023 we had increased it up to the 120 beds. So this is our growth journey in short span of 4 years in terms of the infrastructure as well as the skilled resource. And now we are very well positioned in the Surat and South Gujarat region. And of course, online and offline, both we have got the testimonials which anybody can verify, online as well as offline. So that repute we are enjoying right now in the region, and that is why we have plans for the expansion, and that is why we are coming up with the public offering also to make this journey successful and the growthful. Okay, I think thank you, Pranav ji. Second question now I would like to ask Vimal ji. Vimal ji, on the product and hospital services, अगर इसके बारे में आप हमको कुछ बता दें कि कौन कौन से सर्विसेज हमारी हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें. अगर आप सर्विसेज के बारे में बोले कि कौन कौन से स्पेशलिटीज, नॉन स्पेशलिटीज पे हम फोकस करते हैं. We have started first our main specialty as a cardiology and cardiac surgery. Then we step by step added our other specialty like neurology, neurosurgery, oncology, oncosurgery, even critical care and medicine and oncosurgery. So step by step we are adding our specialty. मीनवाइल डॉक्टर प्रणव ने जैसे बताया, हम लोग अपनी बेड कैपेसिटी भी इंक्रीज कर दी गई. जैसे जैसे अपनी स्पेशलिटी बढ़ती गई तो हमने हमारी स्पेशलिटी भी ऐड ऑन करने की शुरुआत की. राइट नाउ वी आर, बताइए सर, राइट नाउ वी आर कैटरिंग कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोसर्जरी, GI एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, high-end trauma and plastic surgery. So almost we are catering all the tertiary care services except radiotherapy and transplant. Okay, ठीक है. अभी ब्रॉडली विमल जी अगर मैं पूछूं कि सूरत में जो हॉस्पिटल मार्केट है, लाइक आपके अलावा दूसरे हॉस्पिटल्स रहेंगे, ओवरऑल बेसिकली मार्केट साइज या ग्रोथ के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए अगले 2-3 साल में आपको क्या लग रहा है कि हमारे जो रीजन में हम काम करते हैं, हमारा सूरत में बेस है, तो वहां पे कितना ग्रोथ अगले 2-3 साल हमको मिल सकता है? किस प्रकार का ग्रोथ आपके अनुमान से इधर से 2-3 साल तक आपको लगता है आ सकता है? सर, सूरत में हमने 2019 में स्टार्ट किया, तभी जो हॉस्पिटल थी और अभी जो हॉस्पिटल है वो बहुत सारे इंक्रीज हो गए. पर हमारी जो मेन स्ट्रेंथ है सर, मोस्टली सिटी के जो सुपर स्पेशलिस्ट है, जो टर्शरी केयर ट्रीट करते हैं, टॉप 5 डॉक्टर्स, दे आर विथ अस. तो उनकी जो सीनियर कंसल्टेंट की सर्विसेज है तो वो हमारे साथ है. तो ड्यू टू दिस सीनियर कंसल्टेंट हमारी जो हॉस्पिटल की USP है वो इंटैक्ट है, बरकरार है. मीनवाइल आप सर जैसे सूरत की पॉपुलेशन की बात करें तो 72 लाख अराउंड पॉपुलेशन है, तो डिजीजेस भी बढ़ रहे हैं. जैसे अभी लेटेस्ट न्यूज़ में आया था कि डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, इंडिया में हब हो गए हैं. तो ड्यू टू डायबिटिक, हाइपरटेंशन जो भी डिजीजेस प्रोग्रेस कर रहे हैं, जिसमें कार्डियोलॉजी ले लो, कार्डियक सर्जरी ले लो, ऑन्को ले लो, या आप न्यूरो की डिजीजेस ले लो, वो सब बढ़ रहे हैं. और टर्शरी जो सुपर स्पेशलिस्ट या टर्शरी केयर जो करने वाली हॉस्पिटल है वो सिटी में कम थी. और हमें, जैसे मैंने बताया, हमारे साथ जो कंसल्टेंट है मोस्टली मोर देन 20 इयर्स एक्सपीरियंस है, तो सीनियर कंसल्टेंट की सर्विसेज मैक्सिमम पेशेंट को मिले, बेनिफिट मैक्सिमम पेशेंट को मिले, उसके लिए हमने हॉस्पिटल किया. और सर नॉट ओनली सूरत, हमारे पेशेंट अंकलेश्वर से लेके सिलवासा, दमन तक के पेशेंट हमारे पास आते हैं टर्शरी केयर के लिए, क्योंकि सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल सूरत एंड पेरीफेरी में काफ़ी है, पर टर्शरी केयर लिमिटेड हॉस्पिटल है सर. ओके, आई अंडरस्टूड. आई थिंक वेरी वेल आर्टिकुलेटेड विमल जी. अभी तीसरा सवाल मुझे पूछना है कि हमारा जो कस्टमर बेस है वो ज्यादातर B2C है या B2B है? इसके बारे में थोड़ा बताइए. सर हमारा क्या है, सूरत एंड साउथ गुजरात में मोस्ट ऑफ द
पेशेंट प्रीफर्ड करते हैं कि अपने सबसे पहले अपने प्राइमरी जो कंसल्टेंट है, डॉक्टर्स है, उनको दिखाए। तो ऐसे आप कंसिडर करोगे तो हमारा B2B जो है बिजनेस वो ऑलमोस्ट 60% के आजू बाजू है सर, और B2C जो हमारा है वो अराउंड 40% के आजू बाजू है। अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट बात जो मुझे आपसे पूछनी है विमल जी, हम इतने सारे स्पेशलाइज सर्विसेज देते हैं, तो नॉर्मली जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है ऑन्कोलॉजी के लिए, या मान लीजिए आपने बोला कि कार्डियोग्राफी के लिए आता है, तो ये प्राइसिंग हम कैसे डिसाइड करते हैं? इज इट ऑन अ केस टू केस बेसिस कि जितना ज्यादा मरीज अफेक्टेड है, या उसको बेसिक जो आप पैकेज देते हो, ऐसा कोई स्टैंडर्ड पैकेज आपके पास, या बेसिकली इट इज कस्टमाइज्ड? इसके बारे में बताइए सर। इसमें क्या है, अपने जो हॉस्पिटल के टैरिफ है वो स्टैंडर्ड जो अपना टैरिफ होता है उसको SOC में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, शेड्यूल ऑफ चार्जेस में। तो इसमें डिजीज से लेके रूम कैटेगरी से सभी चार्जेस डिफाइन रहते हैं। और जब भी हम लोग ये SOC बनाते हैं, शेड्यूल ऑफ चार्जेस, तभी सिटी से लेके सर हमारी स्पेशलिटी से लेके हमारी जो सर्विसेज से लेके सब चीज़ें हम लोग ध्यान में रख के वो चार्जेस हम डिसाइड करते हैं। इससे सर शेड्यूल ऑफ चार्जेस से जो सोशो इकोनॉमिकल क्लास अपना डिफाइन है, उसमें अगर वो जो नीडी पेशेंट या लोअर मिडिल क्लास होगा, वो सब पेशेंट जनरल वार्ड की सर्विसेज लेंगे। जो अपर क्लास के पेशेंट है वो शूट रूम, डिलक्स रूम, उनकी सर्विसेज लेंगे। दिस चार्ज आर डिफाइन। और हमारे जो हॉस्पिटल में हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन के लिए या बिलिंग के लिए, वो स्टैंडर्ड है कंप्यूटराइज। हम उसमें सभी चार्जेस फीड करते हैं, तो उसमें सभी टैरिफ पहले से एड ऑन है। और सर जैसे आपने बोला कि कार्डियोलॉजी के लिए कोई पेशेंट आता है, तो उसमें एंजियोग्राफी के चार्जेस कैटेगरी वाइज डिसाइड होते हैं। जैसे जनरल वार्ड में कोई पेशेंट एंजियोग्राफी करवाता है तो X अमाउंट है, अगर वो वही पेशेंट एंजियोग्राफी डिलक्स रूम में करवाए तो उनके चार्जेस डिफाइन है। तो ऑल दीज चार्जेस आर डिफाइन। और दूसरा सर, अभी जैसे आपने बताया इंश्योरेंस TPA भी अपना जो पेनिट्रेशन है बढ़ रहा है, तो उसमें भी हमारे शेड्यूल ऑफ चार्जेस ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी को वो हम लोग भेजते हैं, फिर वो टाइप करते हैं। तो अपने चार्जेस आर डिफाइन और डिपेंड ऑन पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी, वो कैटेगरी सिलेक्ट करता है और जो सर्जरी उनको होता है उनकी सर्जरी के हिसाब से वो फिर चार्जेस उनको हम लोग चार्ज करते हैं। बिल्कुल, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से विमल जी आपने एक्सप्लेन किया। प्रणव जी, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू is that what is the competitive landscape for our hospital based in Surat? If you could tell me that in your words, what is the competitive intensity? If you could please share your thoughts. It's a nice question, sir. And basically, in Surat and South Gujarat, we have a very healthy competitive market in the hospitals, if you consider. But there are a couple of, very prominent trust hospital where we need to compete ourselves, and the, pricing and the services are the benchmark, taken from those hospitals. Even if I would say in the private sector also, there are 4 to 5 competitive hospitals which have come up in the last 5 to 7 years time, and with them we need to cope up for the services as well as the their practices and the policies. So in Surat and South Gujarat, typically we are competing with the private as well as the trust hospital. So it is very delicate balance we need to maintain, because being the new hospital in the city and South Gujarat, but we were the trusted people and we are the trusted people amongst the Surat and South Gujarat medical fraternity as well as the community. It is a great responsibility which we carry amongst this competitive people. Oh, fine. I think Pranav ji very well articulated. Now tell me one thing in terms of differentiation. Now you said there are 5-6 hospitals which have come in the last say 5-6 years. Sir, in simple words, अगर मैं बताऊं कि हमारा USP क्या है, like what is the USP of our hospital that patients come to us, they are happy with our service, and obviously affordability जो विमल जी ने कहा वो भी एक point है. तो qualitative terms में हम दूसरों से कैसे different है और हमारा काम हम अच्छा करते हैं, तो इसमें actually क्या on this factor if you could tell us some qualitative points which can highlight the company's achievements. Very true about it. और मैं सच में आपको बताऊं तो अभी जो हेल्थ केयर में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रह गए हैं
वो रादर देन क्वांटिटेटिव से ऑफ कोर्स क्वालिटेटिव रह गए हैं, और क्वालिटेटिव सर्विसेज के लिए ही हम लोग जो हमारे हॉस्पिटल के मॉडल्स हैं वो एसेट लाइट रखते हैं. वी यूजुअली कीप अवर बजट फॉर द कैपिटल इन द प्रोपोर्शन टू द कम्युनिटी नीड. जो कम्युनिटी की नीड है उस हिसाब से हम टेक्नोलॉजी प्लान करते हैं, प्रोफेशनल स्किल्स प्लान करते हैं, एंड वी प्रमोट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन. जो हमारी प्रोफेशनल स्किल हैं, जो डॉक्टर्स की स्किल है, स्टाफ की स्किल है, जो जैसे विमल जी ने बताया था कि सिटी के जो टॉप डॉक्टर्स हैं, दे अमॉन्ग्स दोस टॉप डॉक्टर्स दे आर एसोसिएटेड विद अस. तो एक तो पेशेंट को डॉक्टर की स्किल अच्छी मिल जाती है सर, एंड फॉर दैट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे आप मान लीजिए कार्डियोलॉजी की बात करेंगे तो कार्डियोलॉजी में आईवर्स, FFR, अल्ट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, फ्री फ्लो रेट्स जो होते हैं ब्लॉक के आसपास में, तो उससे पेशेंट को ऑब्जेक्टिवली इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में आसानी रहती है कि सच में एंजियोप्लास्टी विल बी बेनिफिटिंग टू दैट पेशेंट और नॉट. तो वो ऑब्जेक्टिवली पेशेंट डिफाइन कर लेता है कि इससे ये स्कोर मेरा इतना है तो इससे मुझे ये फायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है. अनदर थिंग इज कि जैसे एक्मो हो गया, CRRT जैसी हाई एंड क्रिटिकल केयर के लिए, ICU के लिए टेक्नोलॉजी हो गई, वो भी हमने डे 1 से इंस्टॉल करी है, ताकि जब कभी भी मरीज हमारे पास आए और उनको वो टेक्नोलॉजी की जरूरत हो तो दे डोंट हैव टू रश टू एनी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज दे आर ऑलरेडी क्रिटिकली इल, और उस क्रिटिकल इल पेशेंट को अगर हम कहीं दौड़ाएंगे तो उनको तकलीफ ज्यादा होगी. सो प्रोफेशनल स्किल्स एज वेल एज टेक्नोलॉजी which we are balancing right now, I think that is the differentiating factor. And another thing is our ethical practices in terms of pricing as well as affordability both. तो हमारा जो प्राइसिंग रहता है, यूजुअली हम पेशेंट को फर्स्ट डे एक बार एक्सप्लेन करते हैं कि दिस इज अवर प्राइसिंग स्ट्रक्चर और आपका पैकेज या आपके चार्जेस इस तरह से रहेंगे, और हम इतना जेन्यून ऑनेस्ट एफर्ट डालते हैं कि अगर दूसरे कोई वेरिएबल चीज़ें नहीं हुई हों पेशेंट की हेल्थ के साथ, तो वी ट्राई टू कंप्लीट दैट बिल इन वॉट एवर द एस्टिमेट्स बीन गिवन टू द पेशेंट, ताकि पेशेंट को जो चार्ज पहले दिन हमने समझाया, एक्सप्लेन किया हुआ है, तो लास्ट डे पे भी उसको वही चार्जेस मिले, कोई एडिशनल सरप्राइजेस नहीं मिले. क्योंकि हेल्थ केयर में सबसे बड़ा एप्रीहेंशन ये भी होता है कि जब हम भले ही डॉक्टर साहब ने, हॉस्पिटल्स ने चार्ज समझाए हैं, पर एट द एंड ऑफ अ डे जब डिस्चार्ज होंगे तो हमारा बिल कितना होगा वो यूजुअली अनसर्टेन रहता है दिमाग में. तो हम लोग रोज का रोज पेशेंट को उनका इंटरिम बिल भी बताते हैं, और वी ट्राई टू क्लोज दैट बिल व्हाटएवर एस्टिमेट्स हैव बीन गिवन ऑन द डे और टू. I think so these are the basic differentiating factors from the peers. I think very nicely articulated, Pranav ji. अभी प्रणव जी, लेट्स कम टू द फाइनेंशियल्स FY23 में बहुत स्ट्रॉन्ग आ गए. इनफैक्ट मैं देख रहा था आपका रेवेन्यू 39 करोड़ है, प्रॉफिट भी कुछ 4.23 करोड़ है. पिछले साल का मुझे बताइए, व्हाट वाज द रीजन? वाज इट कोविड दैट द परफॉर्मेंस गॉट इंपैक्टेड? बिकॉज इफ यू सी द प्रीवियस ईयर रेवेन्यू वाज अराउंड 49 करोड़, इस बार प्रॉफिट तो अच्छा आ गया है. तो इसके बारे में बताइए सर, क्या एक्चुअली व्हाट वाज द रीजन फॉर द इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी, डिस्पाइट आपका रेवेन्यू कम था लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी आपकी अच्छी बनी? सर, एज वी ऑल नो कि जो 2 कोविड की साइकिल्स आई हैं सर, उसमें पहली साइकिल में तो इट वाज अनरेगुलेटेड एंड अनप्रेसिडेंटेड. सो एवरी हॉस्पिटल चार्ज्ड अकॉर्डिंग टू देयर ओन पैकेजेस. उसके बाद गवर्नमेंट हैड इंटरवेंट, उसको गवर्नमेंट को और उनको लगा कि भाई नहीं, ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स हैं और उसमें मरीजों को काफ़ी तकलीफें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं. सो गवर्नमेंट केम आउट विद द पैकेजेस कि भाई जो पैकेजेस हम बना रहे हैं वही पैकेजेस पे आप काम करिए. तो गवर्नमेंट हैड कम आउट विद द ICU, HDU, जनरल वार्ड पैकेजेस, और हम लोगों ने भी सेकंड वेव में वो पैकेजेस को ऑनर किया, और जेन्युइन स्पिरिट वी ऑनर्ड दोज पैकेजेस. तो हमारा जो कोविड 1 का साइकिल था उसमें जो हमारा रेवेन्यू इम्पैक्ट हुआ, सेकंड में भी हमारा कोविड था, तो सेकंड वेव कोविड में भी जो रेवेन्यू इम्पैक्ट हुआ, अगर वो नलीफाई कर देंगे तो ईयर ऑन ईयर हमारा रेवेन्यू ग्रोथ है. और प्रॉफिट्स जो हमारे सेकंड वेव में कम हुए हैं, मान लीजिए पहले वेव में थोड़े हमारे प्रॉफिट्स ज्यादा थे 2021 में, 22 में प्रॉफिट्स कम है, 23 इज द टिपिकल हेल्थ केयर और टिपिकल हॉस्पिटल जो हमारा अभी चल रहा है वो टिपिकल फिगर है. जो 22 में प्रॉफिट कम हुआ है सर, वो प्रॉफिट हमारा इसलिए कम हुआ कि ड्यूरिंग कोविड टाइम्स वी वेर अवेयर कि मटेरियल के चार्जेस काफी बढ़े हुए थे, मैन पावर चार्जेस यानी कि सैलरीज, डॉक्टर की फीस और दूसरे जो मैन पावर कॉस्ट थे वो भी बढ़े हुए हैं. एट द सेम टाइम हमने गवर्नमेंट चार्जेस को ऑनर भी किया था सर,
तो जो हमारे रेवेन्यूज पर बेड रियलाइज्ड होने थे वो रियलाइज्ड कम हुए, बट एट द सेम टाइम हमारे जो एक्सपेंडिचर होने थे वो एक्सपेंडिचर हमारे रूटीन से ज्यादा बढ़े, उसकी वजह से ही हमारे जो रेवेन्यू में डीप आपको दिखेगा सर। बाकी जो हमारा अभी 23 का है, 23 इज द ट्रू पिक्चर ऑफ आवर हेल्थ केयर सर्विसेज, और हमारा परफॉर्मेंस जो है, इवन अगर हम ये 6 महीने की भी बात करें सितंबर महीने तक की, तो वी आर प्रेटी वेल ऑन टारगेट, और जो हमारे बेंचमार्क्स हमने सेट किए हुए हैं, टारगेट सेट किए हुए हैं, उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं और उसी के साथ हम आगे भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, आई थिंक वेरी नाइसली एक्सप्लेन प्रणव जी। प्रणव जी, अभी कोविड नहीं है, अभी नॉर्मल सी आ चुकी है, जैसे आपने बोला FY23 के नंबर्स में वो दिख रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड विदाउट पुटिंग अ नंबर, अगर आप हमको सिर्फ आपका आउटलुक शेयर करके बताएंगे कि सर 6 मंथ्स में तो मैं आपका देख रहा था रेवेन्यू काफी अच्छी तरह से बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़े हैं, तो अगले 6 महीने का आउटलुक, व्हाट इज द काइंड ऑफ आउटलुक यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? सर, हमारा जो अभी 6 महीने का परफॉर्मेंस है, द सेम परफॉर्मेंस विल बी कैरिड फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स ऑल्सो। और हमने जो अभी ग्रोथ पर्सपेक्टिव सेट किया है हमारे अचीवमेंट्स और उसको ध्यान में रखते हुए, जो हमें और अचीव करना है एट द एंड ऑफ मार्च 24, तो वी आर प्रेटी वेल ऑन टारगेट। और जो हमारा टारगेट है वो डबल डिजिट ग्रोथ का है, तो दैट ग्रोथ पाथ इज ऑल्सो वेरी क्लियर, एंड वी आर वेरी मच क्लियर अबाउट आवर एक्सपेंशन प्लान्स ऑल्सो. Our new unit is coming up at Valsad, and we are highly hopeful for that unit because that would be a flagship unit in that region, and that is first of its kind super specialty hospital which we are going to set up in the Valsad. So we are expecting very high, our expectations are very high on that unit also. Okay, ठीक है. I think now coming to the working capital side of the business, प्रणव जी, नॉर्मली हमारे बिजनेस में वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना लंबा होता है? लाइक टिपिकली ऑल सर्विसेज आर प्रीपेड, हॉस्पिटल के बिजनेस में तो आपको पहले पेमेंट करना है, फिर ट्रीटमेंट शुरू होता है, बट फिर भी नॉर्मली मोटा मोटी सर वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना लंबा होता है? सर, वर्किंग कैपिटल साइकिल यूजुअली हमारा 2 से 3 महीने का रहता है यूजुअल कोर्स में। कभी कभी सर गवर्नमेंट योजनाज और PSUs, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के साथ हम जो जुड़े हुए हैं, उनके पेमेंट साइकिल में कोई दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, कोई टेक्निकल हिच की वजह से या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की वजह से, तो ही ये साइकिल डिरेंज्ड होता है। अदरवाइज इट इज टिपिकली वेल इन कंट्रोल्ड, तो वो काफी कंट्रोल्ड रहता है। और हमारा जो बिजनेस मिक्स भी है, पेशेंट मिक्स जो हम गिने, तो पेशेंट मिक्स भी हम उसी तरह से प्लान करते हैं सर, और फॉर्चुनेटली हमारा मिक्स भी उसी तरह से एस्टैब्लिश्ड है कि ताकि हम वो साइकिल को मेंटेन कर पाएं। बिल्कुल। प्रणव जी, मैं आपके प्रेजेंटेशन में देख रहा था कि हमारे कुछ 25 डॉक्टर डायरेक्टली एसोसिएटेड है, कुछ 175 डॉक्टर्स हमारे कंसल्टेंट्स है। तो आगे ये जो अभी हम एक्सपेंशन बोल रहे हैं, वलसाड की फैसिलिटी है, तो वहाँ पे हमको और थोड़े और डॉक्टर्स की जरूरत लगेगी? आई मीन, विल वी रिक्वायर लिटिल मोर मैन पावर? यस सर, वलसाड में हमारा जो प्लान मैंने जैसे बताया सर, इट विल बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विच वी आर ड्रीमिंग अबाउट। और उसके लिए हमने जो मॉडल भी बनाया है, उसमें व्हाट वी आर प्लानिंग इज कि जो हमारी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सर्विसेज हैं, स्पेशलिटीज हैं, जैसे कार्डियोलॉजी हो गया, न्यूरो सर्जरी हो गया, यूरो सर्जरी हो गया, तो उसमें हम चाहेंगे कि हम फुल टाइम डॉक्टर्स भी वहाँ एम्प्लॉय करें, ये सुपर स्पेशलिस्ट की जो वहाँ बेस पे रह के बेस सर्विसेज हमारी प्रोवाइड कर लें। और हमारे पास जो सीनियर डॉक्टर्स हैं रीजन के, साउथ गुजरात के, दे आर ऑलरेडी विजिटिंग द टाउन, तो उनके पास हमारा ही हॉस्पिटल वहाँ पर होगा। तो जो हॉस्पिटल के साथ यहाँ मैत्रेय में, वहाँ सूरत में एसोसिएटेड हैं, वही सर्विसेज हम वहाँ पर उनको हमारे बेस डॉक्टर्स के साथ फुल टाइम सर्विसेज भी करवाएंगे वलसाड में भी, ताकि हमारा Tier 2 सिटी है और जो हमारा कैचमेंट है, क्योंकि वलसाड से हमारा कैचमेंट हमने जो प्लान किया है वो हमारा कैचमेंट दाहणु तक जाएगा सर वलसाड में। तो हमारी जो स्पेशलाइज्ड और सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज हैं, तो वो सर्विसेज हम काफी हद तक आगे ले जा पाएंगे। प्रणव जी, अभी आपने काफी बात वलसाड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात की, तो हमारा अभी कंपनी का IPO आने वाला है, तो इसके बारे में शेयर सम थॉट्स कि कितना फंड रेजिंग होने वाला है, प्लस बेसिकली वलसाड हॉस्पिटल के अलावा और भी कोई खर्चे हैं जहाँ पे हम इस IPO से फंड करने वाले हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। सर, हमारे जो IPO प्रोसीड्स हैं, जो मेनली हमारे खर्चे IPO से होने वाले हैं, वो वलसाड एक्सपेंशन के लिए एक चीज है। दूसरा, हमारा थोड़ा सा 1-8 करोड़ जितना हमारा हम प्रेफरेंशियल शेयर्स रिडीम करना चाहते हैं, जो पार्टनर्स हमारे साथ प्रेफरेंशियल शेयर से जुड़े हुए हैं,
तो उनका हमें थोड़ा रिडीम करना है, सो दैट कंपनी विल बी लिटिल फ्री फ्रॉम द लायबिलिटी साइड। और तीसरी चीज है वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा, बिकॉज वी आर एक्सपांडिंग टू वलसाड, जो हमारा मेजर कैपिटल इंटेंसिव है, और आईपीओ का मेजर प्रोसीड्स भी वलसाड कैपिटल के लिए जाएगा। हमारे जो इक्विपमेंट्स लगेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़े हमारे जो खर्चे हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वलसाड का, वो भी हमने आईपीओ प्रोसीड से प्लान किया हुआ है। बट एट द सेम टाइम वी आर एक्सपांडिंग, और हमारे जो प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में हैं उसके लिए हमें थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल भी लगेगा। सो बेसिकली 3 मेन ऑब्जेक्ट्स आर देयर। वन इज द कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर अवर एक्सपेंशन ऑफ द वलसाड यूनिट first. Second is redemption of the preferential share, and third one is the working capital, whichever is in small amount which would be required for managing these units. बिल्कुल। प्रणव जी, ये वलसाड का हॉस्पिटल आने के बाद हमारी टोटल बेड कैपेसिटी कितनी होगी, और करंटली हमारे जो करंट हॉस्पिटल्स है उसमें हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना होगा मोटा मोटी? सर, अभी कैपेसिटी की बात करूं तो हमारा सूरत का यूनिट है, दैट इज 120 बेड, और वलसाड का जो यूनिट है हमारा 125 बेड का होगा। और हमारी जो टोटल बेड कैपेसिटी हो जाएगी दैट विल बी अराउंड 245, ये हो जाएगी। और अभी हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एट सूरत लेवल वो हमारा अभी 60% पे है सर। ओके। अच्छा, इनफैक्ट और एक बात मुझे आपसे पूछनी थी कि नॉर्मली जब आप नया हॉस्पिटल चालू करते हो तभी व्हाट इज द एवरेज रेवेन्यू पर बेड व्हिच यू एज्यूम, लाइक नॉर्मली मार्केट में प्रणव जी क्या होता है ना कि एनालिस्ट जो होते हैं वो पूछते हैं कि आपका एवरेज बेड रियलाइजेशन कितना है, तो मोटा मोटी आपका एक इनिशियल जो बजट होगा कि भाई इतना बेड है, 100-225 बेड है, अभी नया जो वलसाड हॉस्पिटल है वो करीबन 125 बेड्स का है, तो मोटा मोटी व्हाट काइंड ऑफ फिगर आर यू वर्किंग विद? आई मीन दिस कैन बी अ ब्रॉड रेंज, अगर आप फिगर बट एटलीस्ट एक ब्रॉड रेंज बताएं तो अंदाज आएगा। सर, अभी जो हमारा सूरत का हॉस्पिटल है दैट ऑपरेट्स एट अप्रोक्सीमेटली, राउंड फिगर्स बता रहा हूँ, तो 23,000 एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड पर डे का है अभी। और वलसाड हमारा नया यूनिट है, टेरिटरी है, इट्स पेरिफेरी ऑफ द सूरत, बट एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी फास्ट ग्रोइंग टाउन। तो वलसाड का हमारा आरपॉप भी हम लोग 18 से 20 हजार की रेंज में व्हेन यूनिट विल बिकम कंप्लीटली मैच्योर इन कमिंग 2-3 years टाइम, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट टू बिगिन विद एनीथिंग बिटवीन 12 to 15 वी आर एक्सपेक्टिंग राइट नाउ। अच्छा प्रणव जी, नाउ वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज ऑन द रिस्क ऑफ द बिजनेस। देखिए, अभी आपने बोला कि कोविड के टाइम पे तो सबके लिए बहुत तकलीफ थी। हमारा धंधा तो वैसे भी हॉस्पिटल का रिसेशन प्रूफ होता है क्योंकि हेल्थ केयर इज वेरी क्रिटिकल। तो इन योर सेंस, आप इतने सालों से बिजनेस चला रहे हो, तो आपके हिसाब से अगर हम कोविड को छोड़ दे तो कैन वी एज्यूम दैट दिस इज अ रिसेशन प्रूफ बिजनेस? हमारे धंधे में ऐसा कोई बड़ा रिस्क नहीं, अगर हम काम अच्छा तरह से करते हैं, पेशेंट को अच्छी तरह से सर्विस देते हैं, तो मोटा मोटी ये समझ के चले कि ऐसा कोई हमारे लिए बड़ा रिस्क धंधे में नहीं है। दैट्स ट्रू सर, इट्स अ कैश फ्लो रिच काउ। और विमल यूजुअली हमें हमेशा बोलता है कि हेल्थ केयर में कभी रिसेशन आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वॉर भी हो गया तो भी हेल्थ केयर सर्विसेज की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। सो diseases are completely different, but apart from that, healthcare is very much integral part of our body as well as life. तो रिसेशन तो नहीं बोल सकते हैं, बट सर ऑफ कोर्स आज की तारीख में व्हेन गवर्नमेंट इज वेरी एग्रेसिव फॉर हेल्थ केयर ऑफ द कॉमन मैन, तो दे आर कमिंग अप विद लॉट मेनी योजनाज एंड एवरीथिंग। बट यूजुअली दीज योजनाज जो उसके शेड्यूल ऑफ चार्जेस वगैरह रहते हैं वो लोअर साइड रहते हैं, और वो लोअर साइड चार्जेस में आपको अगर प्रोफेशनल स्किल्स मैनेज करनी है, दैट इज अ चैलेंजिंग टास्क राइट नाउ इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री. So I think that is the only challenge which anybody would face in the coming time. Those who need to cope up on the both fronts, they need to manage the professional skills basically from doctor side as well as the nursing and the paramedic staff. ये दोनों फ्रंट पे, तो यही कटिंग एज चैलेंज है. Otherwise, hospital and healthcare services are pretty well smooth going stuff. बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट कि इतने सारे डॉक्टर्स को, इतने सारे टेक्निकल टीम्स को साथ में लेके काम करना. आई थिंक दैट इज द बिग चैलेंज, बिकॉज फाइनली इट इज ऑल अबाउट टीम वर्क. प्रणव जी, लास्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द इन्वेस्टर्स. यू हैव बिल्ट अ कंपनी
right from scratch and now you are hitting the capital market. So जो नए इन्वेस्टर्स अभी आपके जो पार्टनर्स बनेंगे इनके लिए आपका क्या ब्रॉड मैसेज होगा? लॉन्गर टर्म में आप इनको कैसे रिवॉर्ड करोगे? देखिए शॉर्ट टर्म तो बात अलग है, बट लॉन्गर टर्म में how will Maitri Medicare generate good amount of returns or wealth for the shareholders? थोड़ा सा इसके बारे में अगर if you can give a message. Yes, sir, we have a very long vision to start. और जब हमने कंपनी शुरू किया था तभी हमारा विजन भी काफ़ी ब्रॉड एंड लॉन्ग लास्टिंग था, और उसी विजन से हमने कंपनी भी शुरू किया था. एंड दैट इज़ वाई इफ़ यू विल सी रिट्रोस्पेक्टिवली देन वी आर आई वुड से वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग हॉस्पिटल इन द रीजन, एटलीस्ट साउथ गुजरात, जिसमें हमारे नंबर्स और यूनिट्स दोनों बढ़ रहे हैं. और आगे भी हमारे जो प्लान है, ग्रोथ प्लान्स हैं, वो एक्सपेंशन के बहुत एग्रेसिव हैं. सो बिकॉज हमारा जो मैनेजमेंट बैंडविड्थ है with myself, Bimal and our all units are having the proper hierarchies, यानी क्वालिफाइड हमारे हॉस्पिटल हेड्स हैं जो प्रोफेशनली हॉस्पिटल्स को मैनेज करते हैं. सो दैट ये हमारी जो मैनेजमेंट बैंडविड्थ है, और डॉक्टर नरेंद्र तंवर जैसे क्लिनिकल विजनरी भी हमारे साथ हैं. तो आगे जाके आई विल गिव ओनली अ मैसेज टू द इन्वेस्टर्स दैट वी आर हार्डकोर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड वी आर वेरी प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी. इसी के चलते ही हम लोगों ने इतना शॉर्ट टाइम में ये करेज भी दिखाया है कि वे लेट अस गो टू द पब्लिक एंड लेट अस टेस्ट आवरसेल्व्स आल्सो इन द इन्वेस्टर्स मार्केट, कि हम लोग भी उतना परफॉर्म अभी कर पाए कि नहीं कर पाए, तभी जाके हम आगे भी उनको प्रोमिसेस जो हम कर रहे हैं वो प्रोमिसेस फुलफिल कर पाएंगे. सो हमारे बहुत एग्रेसिव प्लान्स है एक्सपेंशन के, जिससे कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे साथ ग्रो करें और इन्वेस्टर्स के साथ हम लोग भी ग्रो करें. तो इट्स अ वाइस वर्सा सिचुएशन, हम लोग ग्रो करेंगे तो इन्वेस्टर्स भी ग्रो करेंगे, और इन्वेस्टर्स हमारे साथ ग्रो करेंगे तो हम लोग भी और ग्रो करेंगे. एंड दिस साइकिल विल कंटिन्यू और द रिटर्न्स विल कम अप विद द ऑल एक्सपेंशंस एंड फ्रॉम द ऑपरेशंस ऑफ द एग्जिस्टिंग यूनिट्स बोथ. ठीक है. आई थिंक प्रणव जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. इनफैक्ट विमल जी, आपका भी थैंक यू. बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करने को, और मेरी बेस्ट विशेस आपको, आपके एंटायर मैनेजमेंट टीम को. And Pranav ji, best wishes for your forthcoming IPO. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir, for sparing your time.